after the surname. But one surname, Vaishali, after Vaishali, that's the surname is Raktadani. Dani means Dani, especially word in Hindi or Nepali version. This means, but according to the legend, according to the reality, Dani means giving everything for others. Life, not it, mind, spiritual, all of the things to donate. It is Dani. Mrs. Vaishali Raktadani is coming from Ahmedabad, India. She is donated blood 81 times. 81 times at the age of 43. It's not a job. It's special, motivated and inspirable for whole of the women in the world. Because in our society, women says that not to donate blood because we are going to be weakness, weak feelings and menstruation problem, etc, etc. But Mrs. Vaishali shows the result not to take anything recoverage, anything bad effect by donating blood, but highly satisfied, healthy, mentally healthy, I'm physically healthy, I can do everything. Shows the example Mrs. Vaishali. For one example, when she donates blood, she goes to drive car and take a video on the corner of stopping the car to show the example, of whole of the women in the world, whole of the female in the world. You can give blood, you can donate blood, nothing else. I can give blood, I can donate blood and drive a car, take a video. And especially things is that once a time when she donate blood, she goes a trip. She's a trekker also. She goes around, that's 12,500 feet travels and minus 10 degrees centigrade temperature within 21 kilometers driving. So all of the people who are listening to me, these are the 4 people, 1 female, 3 male persons are one group like a finger of my hand. If one finger is something else, something happens, all of the remaining fingers are being terrible. As the same way, they are the one bunches of graphs. They are the same surrounding of the life. One is heart, other is breakings, other is like the organs of the body. Rakta Kanti is one of the body. They are the branches. If one branch is something wrong, we can't say that the life is not sustained. So if the sustainable lives, the 4 branches are needed. Likewise, Mr. Naresh Sharma, Mr. Dr. Sanjeev Mehta, Mr. Mahendra Raktakanti and Vaishali Raktadani. Thanks and salute for them, 4 of the members in the slogan and logos of Raktakanti. They are successfully completed the power of the group in India, Hindustan. I'm not saying easily because I saw directly in their body, every parts of organs, every parts of their clothes, every parts of their heart retain one logo, retain the letter and symbol of its significant, that is Raktakanti. Mr. Naresh Sharma is mostly the person. In everywhere he wrote the logos of Raktakanti and nationality. He says to me that nation and nationality is so important
First of all, nationality is in my heart. After then, Rakta Kanti. So I do the best work. We do the best work. I among other people do the best work. So they are coming to Nepal for the second blood conference, and we are happy. We are lucky to meet them in once upon a place. Okay, now I'm going to one chance to my collegians, Mrs. Saraswati Gautam, to some of the talks with them about the why they come to Nepal and how they conduct the on responsibility in the field of donate blood. Thanks for it. दर्शकवृन्द, यसै गरी हामीसँग अर्को अतिथि हुनुहुन्छ वैशाली रक्तदानी। कस्तो मिठो नाम छ, वैशाली रक्तदानी। पछाडि जोडिएको सरनेमले पनि एकदमै उहाँको के गर्नुहुन्छ पहिचान खुलाइदिइरहेको छ। शीघ्रमा आउनुहोस् है, स्वागत गरौँ। स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। इतनी अच्छी है, इतनी खूबसूरत है, हंसमुख है ना, सोशल वर्कर है। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। वैशाली रक्तदानी। रक्तदानी का मतलब क्या है? हाँ, रक्तदानी मतलब रक्त का दान करने वाली। हाँ। तो एक्चुअली मेरा नाम वैशाली पंड्या है, बट जब से ब्लड डोनेशन करना स्टार्ट कर दिया हो गया तब से सब लोग मुझे वैशाली रक्तदानी के नाम से जानते हैं। कितने अच्छे नाम। हाँ, आपका सत्कर्म का त्याग लग गया ना, है ना? आपको ये जो ये रक्तदान में जो आप आए, ये मूवमेंट में लगे ना, तो किसके प्रेरणा से आपको ये मूवमेंट में लगने का लिए किसका प्रेरणा आया? वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर मी। मेरे पापा जो रेगुलर ब्लड डोनर थे, 99 टाइम्स ब्लड डोनेशन कर चुके हैं, तो अभी तो उसका 65 कंप्लीट हो गया तो नहीं कर पाते। हाँ। वो मेरे मोटिवेटर हैं। उन्होंने 17 ईयर में मेरा फर्स्ट ब्लड डोनेशन करवाया था, जो मैं बिल्कुल ब्लड डोनेशन करना नहीं चाहती थी। मेरे जबरदस्ती ब्लड डोनेशन हुआ था। पापा 18 हाँ 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 हाँ, एक्चुअली होता है 18 to 65। बट मैं पहले से हेल्दी हूँ, अच्छा खाना खाती हूँ, मेरा हेमोग्लोबिन भी बहुत अच्छा रहता था। हाँ। और एक इमरजेंसी केस था, पापा ने दिया, फिर भी जरूरत थी ब्लड की, तो वो मुझे पकड़ के लेके गए थे कि आज देना है। तो मैंने फर्स्ट टाइम, सच बोलूं, दिल से नहीं दिया, जबरदस्ती दिया था पापा के कहने से। बहुत सारे डर लग गए थे। हाँ, और एक बता देती हूँ, आपने डर बोला। टिल टुडे अभी भी मैं निडल से बहुत डरती हूँ। मैं निडल आज तक जब भी मेरा ब्लड डोनेशन होता है ना, मैंने कभी मेरी निडल नहीं देखी है। पर एक ही सोचती हूँ कि अगर मैं 2 सेकंड या 3 सेकंड का पेन अगर मैं सहन कर लूंगी ना, तो मेरे कारण 3 to 4 लाइफ से हो जाएगी। और कुछ और दूसरा इसी क्वेश्चन में बोल रही हूँ, आपने बोला कि आपको मोटिवेशन, एक तो पापा है। आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड डॉक्टर हितेश पंड्या, जो कि साइंटिस्ट है, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी है। और आज मैं जो यहाँ पर हूँ ना, तो उसी के कारण हूँ। वो मुझे बहुत मोटिवेटर करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं। तो कितनी खुद नसीब है आप, रियली, क्योंकि इतना अच्छा पार्टनर मिला आपको। रियली पूर्व जन्म में बहुत अच्छे काम किया होगा, पुण्य का। यही समझते ना, हम हिंदू है ना, इसलिए ऐसे ही बोलते हैं ना। एग्जैक्टली। माँ बाप जैसे दादा दादी यही बोलकर जाते हैं ना, वही संस्कार तो हम लेकर जाते हैं। शायद आपने ऐसे ही किया है, क्योंकि आपको जो आज वैशाली रक्तदानी है, आधा जीवन तो माँ बाप ने दिया, आधा जीवन आपके हस्बैंड ने दिया। उनको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपको हमने पाया। और मैसेज। और दूसरी बात, आपने अभी तक ब्लड के अलावा और क्या क्या डोनेट किया है? क्योंकि आप तो डोनेट करने में दानी, नाम ही तो आपका दानी है, महादानी। क्या क्या किया है? अभी तक मैं 81 टाइम्स डोनेशन कर चुकी हूँ। और इसके अलावा मैंने हेयर डोनेशन किया है। 2018 में एक कैंसर पेशेंट गर्ल थी, जिनको आफ्टर कैंसर उसके पूरे हेयर चले गए थे, तो हेयर की जरूरत थी। तो मेरे पास एक सैंपल आया, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। उसका सैंपल आया था, वो सैंपल मेरे हेयर से मैच कर गया। और उसको ऐसे हेयर चाहिए थे जो हेल्दी हो, वाइट ना हो, जिसमें कभी केमिकल यूज न किया हो। तो मेरे हेयर का सैंपल मैच हुआ।
फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं दूंगी, क्योंकि बचपन से मेरे बहुत लंबे बाल थे, मैं अपने बालों से बहुत प्रेम करती थी, हर फीमेल्स करती है। सही। फिर उसकी जो गर्ल थी उसके पापा ने मुझे बहुत समझाया था कि अगर आप दोगे तो मेरी बेटी की लाइफ बन जाएगी। फिर मेरे हस्बैंड से डिस्कशन किया तो मेरे हस्बैंड ने एक ही बात बताई कि हर 3 महीने में तू ब्लड डोनेट करके लोगों को जीवन दान देती है, हर 15 दिन में एसडीपी डोनेशन करती है, तो ये भी एक पुण्य का काम है। तो फिर मैंने मेरा 2018 में 2.5 फुट बाल उसको डोनेट कर दिए। तो फिर आगे बताऊं, 1 वीक तक मैं घर से बाहर नहीं निकली थी, क्योंकि मेरे बाल बहुत छोटे हो गए थे। तो लाइक फीलिंग ऐसे आई थी। फिर मुझे बहुत खुशी हुई कि अभी क्या हो रहा है कि वो जो जिस लड़की को मेरे बाल है, तो अभी उसके बाल भी लंबे हो रहे हैं और मेरे भी अभी और लंबे होते जा रहे हैं उसके आफ्टर डोनेशन। तो कहने से ना देने से बढ़ता है। तो इसलिए तो दान ही, इसके लिए दान। और ना वैशाली जी, आपने आपका हर एक जो चीज यूज करते हैं ना, अब तो हम तो फीमेल है, गहना वगैरह भी पहनते हैं, सभी में रक्तदान, ऐसे रक्त क्रांति ऐसे लिखा है। हाँ, उसका रीजन बोलो या जो, क्योंकि हम मिशन रक्त क्रांति हिंदुस्तान से जुड़ी हूँ और हमारा जो मकसद है हर घर रक्तदाता, घर घर रक्तदाता, और 100% वॉलेंटियर ब्लड डोनेशन करना, लोगों को जगाना। तो हर चीज के लिए कुछ, आजकल का हर किसी को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, मुझे भी पड़ती है, सबको पड़ती है। तो मैं इसलिए मेरी सब ज्वेलरी वगैरह उसके अंदर रक्तदान, महादान, रक्त क्रांति हिंदुस्तान, तो मेरा मंगलसूत्र, मेरे लॉकेट्स, मेरी पायल, जो कुछ भी है वो मैं पहनती हूँ। जब भी फंक्शन में या ब्लड डोनेशन में जाती हूँ तो लोग उसके देखते, खास करके फीमेल डोनेशन कम हो रहा है, ऑल ओवर रेशियो बहुत कम है। इंडिया का भी कम है, नेपाल का भी कम है, क्योंकि और फीमेल्स का एनीमिक प्रॉब्लम होते हैं और एवरी मंथ ब्लड लॉस का भी होता है सबका। तो उन लोगों को रेडी करना, क्योंकि हर फीमेल्स के होती है ना, तुरंत देखते हैं कि मैम आपने ये क्या पहना है, दीदी आपने क्या पहना है। फिर उससे वो मेरे से बात करेंगे ना, तो मैं उसको ब्लड डोनेशन के लिए मोटिवेट कर देती हूँ। तो इससे ज्यादा से ज्यादा वॉलेंटियर ब्लड डोनेशन होता है। तो अभी भी ये तो मैं चालू ही रखूंगी, कुछ न कुछ लोगों को जगाने के लिए, क्योंकि हमारा मकसद यही है, मिशन रक्त क्रांति हिंदुस्तान। आप एक दिन तो आपका जो मिशन है उसमें कामयाबी जरूर होगी। जरूर होगी, अब तो हो रही है, दिख रही है। हाँ, दिख रही, सच में दिख रही है। क्योंकि तो लोग अब जाग रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगी, मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो थिंकिंग है कि लोगों को जगाने के लिए आपको लोकल लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और ब्लड डोनेशन से पहले उसको थोड़ा मोटिवेट भी करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप किसी को बोलोगे कि आप ब्लड डोनेट कर दो, वो थोड़ा मुश्किल है। तो आप कैसे करेंगे? मैं अहमदाबाद के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करती हूँ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से। तो जब भी मेरा कैंप होता है, तो कॉर्पोरेट ऑफिस हो, यूनिवर्सिटीज हो, सोसाइटीज हो, तो उसके 1 वीक पहले मैं वहां जाके एक मोटिवेशनल लेक्चर देती हूँ, ब्लड डोनेशन के बारे में बताती हूँ। और कहते हैं ना कि कुछ भी मोटिवेशन लेक्चर देने से पहले खुद को मोटिवेटर बनना पड़ता है। तो मैं वहां बताती हूँ कि मैंने इतनी बार ब्लड दिया है और आपके सामने खड़ी हूँ, तो आप भी दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। उस सबके बेनिफिट बताती हूँ, तब बहुत सारे डोनर रेडी हो जाते हैं और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, और उसके कारण हम बहुत लोगों की जान बचा पाते हैं। और एक बात विशाली जी, जो आप ज्वेलरी में रक्त क्रांति डाले ना, वो एक वैशाली है, और ऐसे डालने, ऐसे लिखने और भी वैशाली है। लाइक आई एम नॉट अंडरस्टैंड। जैसे आपने हर एक आपके ज्वेलरी में रखा है ना रक्त क्रांति, ऐसे ही और दूसरे जो फीमेल है ना, वो बनाया है कि नहीं उन्होंने? हाँ, एक हमारे वहीं पर है, अहमदाबाद के अंदर भी एक फीमेल भी है। हाँ, मैंने जब फर्स्ट टाइम मेरा लॉकेट बनाया था ना, मैंने एफबी पे अपलोड किया है, आप भी देख सकते हो मेरे एफबी अकाउंट पे जाके। तो हिंदुस्तान में कम से कम, पूरे हिंदुस्तान से कम मुझे 50 से 100 कॉल आए थे कि मैम आपने ये कहाँ बनवाया। मतलब उसको देखकर मैंने फर्स्ट टाइम, मतलब लाइक मेरी ऑल ज्वेलरीज गोल्ड एंड सिल्वर में है,
और मैं मतलब तभी मैंने सबको बताया भी था कि मैंने यहाँ बनवाया। किसी ने बोला कितने में बनता है, ये बनता है, तो काफी लोगों को मोटिवेट होके काफी लोग बना रहे। कोई लोकेट बना रहे हाथ का, लाइक डिफरेंट हाँ। डिफरेंट। तो वो भी मतलब मेरे लिए अच्छी बात है कि इससे भी लोग मोटिवेट हो रहे हैं। मोटिवेट हो रहे हैं। हाँ। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं फर्स्ट टाइम नेपाल आई। मैं बहुत सारे कंट्रीज में जा चुकी हूँ और मुझे मेरा शौक भी है ट्रैवलिंग और इसके लिए भी जाती हूँ। लेकिन नेपाल नेपाल के बारे में बहुत सुना था और कहते हैं कि बेटी और रोटी का जो है पड़ोसी देश है। हाँ। और काफी लोग हमारे वहाँ नेपाल के लोग भी बहुत वहाँ भी हाँ, वर्क हाँ। करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनसे भी बहुत कुछ सुना था लेकिन देखा पहली बार। कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब ऑल पीपल आर लविंग, केयरिंग और ऑल हॉस्पिटैलिटी इज रियली ग्रेट। एंड आज हमने पशुपतिनाथ जो देवों के देव है, वहाँ का दर्शन किया और इतना अच्छा लगा। और मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर आ पाऊंगी, क्योंकि कहते हैं कि हमारे वहाँ है कि चार चार धाम धाम से यात्रा के हाँ, बाद हाँ। आपको पशुपतिनाथ की यात्रा करनी हाँ। चाहिए। तो मेरे मन में कब से था नेपाल आने का। और थोड़ा आना भी मुश्किल था, लेकिन थैंक्स टू जनक भाई खड़के जी। एक्चुअली ये प्रोग्राम डिसाइड मैं यूरोप में थी, तो 10 दिन पहले ही मैं आई थी, लेकिन इन्होंने और ब्लोडान वालों ने बोला तो मेरे लिए बहुत अच्छा। अगर मैं नहीं आती तो मैं मिस कर जाती। इतने अच्छे नेपाल के लोगों से मिलना, इतनी ब्यूटीफुल जगह है। और दोबारा भी आने वाली हूँ हस्बैंड को लेकर। हाँ। पक्का मैं प्रॉमिस करके जाती हूँ। उस बार बहुत आगे- बहुत अच्छा लगा। खाना भी बहुत मतलब लोकल फूड भी अच्छा लगा। 100% हम लोग वेजिटेरियन है, लेकिन वेज फूड भी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि नॉट मतलब अवेलेबल नहीं है। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छे। बहुत अच्छे हैं। सच में। अब आप नेपाल से अपने दिल और दिमाग में क्या क्या लेकर जा रही हो? देखो, मैं यहाँ से एक तो लोगों का जो प्रेम स्नेह वो लेकर जाऊंगी। और कल ये जो 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने 2-3 बातें बहुत अच्छी सीखी। वो कहते हैं ना कहीं पर भी जाते हैं तो सीखने को मिलता है। तो मैंने ये ब्लोडान में मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वो जैसे वहाँ की चीजें हमने यहाँ बताई, तो यहाँ के लोग वो अप्लाई कर सकते हैं, तो हम भी ये वहाँ लेकर हम यहाँ के विचार भी वहाँ लेकर जाएंगे। हाँ। तो वो हम भी वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो बस मेरे दिल में नेपाल का लिए जो प्रेम है वो मैं लेके जा रही हूँ। आप सबसे मतलब मुझे ये लग रहा है कि मिशन रक्त क्रांति हिंदुस्तान, मिशन अब तो मिशन रक्त क्रांति नेपाल भी वो बहुत सक्सेसफुल हो गया। हाँ। तो उसको लेके जा रही हूँ। और वो जो लोगो है मिशन रक्त क्रांति नेपाल का, वो मैं यहाँ से मेरे साथ लेके जा रही हूँ। और मैं शायद हो सकता है मेरा अगला नेक्स्ट कैंप होगा ना, उसमें मैं लगाऊंगी। ओके, बहुत जरूर लगाना। आपने बोला 81 पटक आपने रक्तदान किया, तो कैसे संभव हुआ? क्योंकि आप तो लेडीज है, मीन्स वगैरह और बच्चे होंगे, यावत विविध होता है ना, कैसे संभव हुआ? देखो, मेरा 81 है टोटल ब्लड डोनेशन, 57 हॉल ब्लड और 24 मेरा एचडीपी है, एचडीपी डोनेशन, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। वो मैं हर 15 दिन में अहमदाबाद सिविल कैंसर हॉस्पिटल में 2.5 घंटे एडमिट होती हूँ। तो वो कैंसर पेशेंट के लिए भी देती हूँ। उसमें लंबा प्रोसेस होता है। ब्लड डोनेशन 5-10 मिनट में खत्म हो जाता है। इसमें कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि उसमें ब्लड निकलता है, फिर साइकिल मतलब प्लाज्मा अलग होता है, फिर प्लेटलेट्स अलग होते हैं, फिर ब्लड वापस इसमें जाता है। मतलब तो ये भी मैं मतलब लाइक वो भी डोनेट करती हूँ। और ये सब पॉसिबल के 2 ही मतलब एक आप हेल्दी खाना खाओ। हाँ, मैं आपने पूछा नहीं है, लेकिन शायद आप जानते नहीं, मैं फार्मर हूँ। मैं ऑर्गेनिक खेती करती हूँ, खुद ट्रैक्टर चलाती हूँ। भले हमारे वहाँ लोग हैं काम करने वाले, खुद का फार्म हाउस भी है, फिर भी मैं खुद ट्रैक्टर चला के फार्मिंग करती हूँ। अभी मैंने चने, आप क्या बोलते हो उसे, चना को, चना। अभी मेरे वहाँ इतने बड़े हो गए, तो चना खाने से प्रोटीन भी बढ़ता है। और हमारे पूरा ऑर्गेनिक खेती होता है, तो वो सब खाना खाने से अपनी हेल्थ भी अच्छी रहती है। सीजनल फ्रूट, सीजनल जूस, तो ये सब करेंगे तो खुद की हेल्थ तो अच्छी रहेगी, तभी डोनेट कर पाएंगे। और सबसे बड़ा सपोर्ट अपने फैमिली का होता है। जब अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, पापा मम्मी जो भी है, अगर वो आपको एक बार सपोर्ट कर दे और मोटिवेट कर दे, आपको कोई नहीं रोक सकेगा। आप मिशन रक्त क्रांति या मिशन नेपाल, जो भी लाना है वो आप ला सकते हो। बस ला सकते हो। इसलिए वैशाली दानी महादानी, ये बोल सकते हैं ना। मैम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। आप लोगों का जितने अभी हमने इंटरव्यू लिया, आपसे कुछ सीखने को मिला और हमारे आम दर्शकों को भी बताया, है ना। लगो
मोमेंट में लगो, रक्त क्रांति के मोमेंट में लगो, सुकून जरूर मिलता है एक्जेक्टली। है ना? हाँ, और क्या? बस मैं आपके चैनल के माध्यम से हाँ। सबको यही कहना चाहती हूँ, खास करके फीमेल्स डोनर को, कि ब्लड डोनेशन से कभी वीकनेस नहीं आती है। अगर ब्लड डोनेशन करोगे तो आपको जैसे 40s या 50s के बाद मोनोपोज के प्रॉब्लम आते हैं, आजकल सिजरियन के ज्यादा चांसेस है, उससे भी आप दूर रहोगे। हाँ। मतलब ये इतने सारे बेनिफिट है, आपके हेयर अच्छे रहेंगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आप एनर्जेटिक रहोगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स भी डोनेशन करें और लोगों को जीवन दान दें, क्योंकि आपके एक बार के रक्तदान से आप 3 से भी ज्यादा लोगों को जीवन दान दे सकते हो। जय हिंद, जय नेपाल। जय नेपाल। Dear audience, who are talking about Rakta Kranti, blood donation and voluntary blood donors. Our distinguished guest from India on blood conference which held in Nepal within 2 days. Now we are talking about different parts of the life, different parts of the social movement, social donate every sector, but it was emphasis time for the blood. Not to giving but providing, not to take any profit oriented activities but self motivated orientation. It is the most important factor. Thanks for the coordinate Mrs. Saraswati Gautam and who are involved our guest in this event, Mr. Naresh Sharma, Mr. Dr. Sanjeev Mehta, Mr. Mahendra Raktakranti and Mrs. Vishali Raktadani. We are heartily thanks for them, and next one it is joining our matter from through the matter Mr. Janak Khadka, who is the president of Bludan Kathmandu districts. We are very happy to see them and to visit them, to meet them and to collaborate about the functional representatives of the bloods and one global mission. The global mission is that the Rakta Kranti. Nobody can say without Rakta Kranti. Everyone can say, everyone can say, everyone can delight the Rakta Kranti. Thanks for all. Namaskar. Jai Hind.